بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز بدھ 14 صفر سن 1448 ہجری 29 جولائی سن 2026۔ کل نماز کے اہتمام کے فضائل اور فوائد کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ نماز ایک عظیم الشان اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز کو پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات، پھر مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ بعض حالتوں میں نماز صرف مکروہ ہوتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے، ثواب اس کو کم ملتا ہے۔ اور مکروہ تحریمی وہ نماز اس کی ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ لٹانے کے قابل ہوتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ نماز کو پڑھنے سے بجائے نماز کا اہتمام ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی بس، نماز کو سیکھ کر اس کا اہتمام کریں۔ نماز سے پہلے نماز کا اہتمام ہو۔ آپ کے گھر کے اندر آپ دوست احباب میں ہیں، کسی مجلس میں ہیں، آپ کی فکر بتائے کہ بھئی نماز کی اس کو فکر ہو رہی ہے، اہتمام۔ جس طریقے سے آدمی کسی کی شادی میں جاتا ہے، کہیں خوشی کے موقع پہ جاتا ہے تو پہلے سے اہتمام کرتا ہے نا، نہاتا ہے، دھوتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، سمجھو، پھر بھی دیکھتا ہے کہ کوئی کمی پیشی رہ تو نہیں گئی ہے، ایسے ہی پھر وقت دیکھتا ہے کہ بھی میں وقت پہ پہنچ جاؤں، ایسا نہ ہو میں وقت پہ نہ پہنچوں، سمجھو۔ اس طریقے سے جو نماز کے اوقات مقرر ہیں اس سے کم 15 منٹ پہلے نماز کا اہتمام ہے۔ آدمی وضو کر پیشاب کرے، وضو کرے، سمجھے بات، اور 5 منٹ پہلے کم سے کم مسجد کے اندر پہنچ جائے۔ بعض لوگ عین وقت پہ گھر سے نکلتے ہیں، تیز چلتے ہیں، صحیح ہے، لیکن کیا کہتے ہیں مسجد کے اندر دیکھ رہے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی، اب دوڑ لگانا یہ بالکل غیر مناسب بات ہے، سمجھے۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے اور وہ وجہ بھی صحیح ہے تو آپ کو ثواب انشاءاللہ تعالیٰ پورا ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ سو رہا تھا یا کسی کام میں مشغول تھا اور اس کو وقت کا پتہ نہیں چلا، اور وہ دیکھا اس نے وقت کہ بھئی اب وقت پورا ہونے والا ہے، تو وہ جماعت مانا کھڑی ہونے والی ہے، جماعت کی نیت سے وہ وضو کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نماز ہو جائے پھر بھی اس کو پورا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کیوں کہ اس کو اس کی وجہ صحیح تھی، سمجھے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، فالتو بیٹھا ہوا ہے، ابھی تو 10 منٹ ہے، ابھی تو 5 منٹ ہے، سمجھے بات، ابھی تو 3 منٹ ہے، پہنچ جاؤں گا، یہ جان بوجھ کے تاخیر کر رہا ہے۔ ابھی جب عین وقت ہو گیا تو اب کیا کہتے ہیں دوڑ رہا ہے، باہر تو چل رہا تیز دوڑ رہا صحیح ہے، لیکن مسجد میں آ کے دوڑ رہا اور پھر سوچتا ہے میں پہلی صف کا ثواب حاصل کروں، اور پھر کیا کہتے ہیں دوڑ کے مسجد میں جاتا ہے، پھلانگتا ہے،
اور آگے جا کے بیٹھتا ہے تو یہ غیر مناسب بات ہے. ایسے بندے کی عبادت جو ہے وہ فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا. کسی کے کندھے پھلانگنا یہ غلط بات ہے. بات سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے جماعت میں شریک ہو رہا بھاگ بھاگ کے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی وجہ اگر تاخیر کی صحیح ہے تو آپ کو ثواب پورا ملے گا. بھاگنے کا کیا جواز ہے؟ اگر آپ کی کیا کہتے ہیں وجہ صحیح نہیں ہے تو آپ بھلے دوڑ کے پہلی صف حاصل کر لیں, تکبیر اولیٰ حاصل کر لیں تو آپ کو ثواب وہی ملے گا جو اللہ دینا چاہے گا. بلکہ اگر کسی کا آپ نے حق تلفی کر دی, کس کو دھکا مار دیا, کندھا مار دیا, سمجھے بات, کسی پہ غصہ کر دیا, کوئی بچہ سامنے آ گیا کسی کو غصہ کر دیا تو کیا ثواب ملے گا؟ نماز کے اندر جو تکبیر تحریمہ ہے یہ فرض ہے. تکبیر تحریمہ فرض ہے. بعض لوگ جو ہے ابھی امام تکبیر تحریمہ کہتا ہی نہیں ہے تو تھکا کر کے نیت باندھے. تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر بر جیسے ہی وہ امام صاحب سوچے تو پھر اس نے اللہ اکبر کہنا ہے. بات سمجھ رہے؟ وہ بر ہو یہ اللہ اکبر ہو. بعض لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں بھی اللہ اکبر امام شروع کرتا ہے یہ بھی اللہ اکبر, اس کا پہلے ختم ہو گیا تو یہ جماعت میں شریک ہوا ہی نہیں. بات سمجھے؟ وہ فرض ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ بعض لوگ ایسے پکڑ لیتے کان یا ایسے کرتے, سمجھے بات, یہ غلط طریقہ ہے. اصل جو طریقہ ہے پہلی پوری باڈی قبلے کی طرف ہو, اس کے بعد یہ ہاتھ جو ہے یہ بالکل انگلیاں ایسے سیدھی ہونی چاہیے, یہ انگوٹھے ایسے ہو, انگلیاں سیدھی ہوں ایسے. یہ کان کے لو ہے نا, یہ کان کے لو نیچے اس کے یہ انگوٹھے سے لگے, یہ سیدھے ہونے چاہیے بالکل سیدھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ ہتھیلی اس کے اوپر, یہ ہڈی کے اوپر رکھ کے 3 انگلیاں اوپر, 2 انگلیاں سے اس کو پکڑ کے ناف سے نیچے باندھنا ہے, ناف سے نیچے باندھنا. اب ثنا پڑھنی ہے, تعوذ پڑھنا, بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ. امام کے پیچھے ہیں تو امام قرات پڑھے گا, زور سے پڑھے, مغرب عشاء فجر میں یا زور اثر میں آستے پڑھے, اس نے کرنی, آپ خاموش رہیں گے ثنا پڑھنے کے بعد. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس کے بعد جو اللہ اکبر کہتا ہے, یہ اللہ اکبر کا پہلی اللہ اکبر جو ہے وہ تکبیر تحریمہ, اس کی اتباع فرض ہے. امام سے پہلے کہے گا تو وہ نماز میں شامل نہیں ہوگا. لیکن اگر دوسری تکبیر جو رکوع میں جانے کی ہوتی ہے وہ فرض نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نہ ہی اس کا اتباع فرض ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں امام اللہ اکبر کہے گا, امام پورا رکوع میں چلے گیا ہوتا ہے اور وہ جا کے پھر کہتا ہے اللہ اکبر. امام کی کیفیت کی اتباع ہے ہمارے اوپر. کیفیت مانا امام رکوع میں چلے گیا, اب وہ اللہ اکبر کہہ کے جائے یا بغیر اللہ اکبر کہہ کے جائے, ہم نے رکوع میں جانا ہے. ایسے میں لوگ بازے مجھے کہتے ہیں صحیح آپ امام صاحب سے پہلے چلے جاتے ہو, ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. بات سمجھے؟ وہ سوچتے ہیں کہ امام اللہ اکبر کہے گا تو پھر ہم رکوع میں جائیں گے, تو یہ غلط بات ہے. اللہ اکبر کہہ کے وہ چاہے رکوع جا رہا ہے رکوع کے اندر اور اللہ اکبر کہہ کے جا رہا ہے تو جب بھی اتباع کرنا ہے. اور اگر وہ اللہ اکبر سے پہلے خود چلے گیا اور بعد میں اللہ اکبر کہہ رہا, اکثر ایسے ہی کرتے ہیں, امام رکوع میں ہوتا ہے بعد میں وہ کہتا ہے اللہ اکبر. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں کیفیت کی اتباع کرنی ہے. اب ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ لوگ آئے, امام نے جو ہے اللہ اکبر کہا نہیں, رکوع میں چلے گیا, لوگ کھڑے رہے. کچھ سمجھدار لوگ تو چلے گئے
कुछ खड़े रहे, समझे बात। अब उसने जब समी अल्लाह की जगह अल्लाह अकबर कह दिया, अब जो खड़े थे वो रुकू में चले गए और जो रुकू में थे वो खड़े। तो आप बताओ, अब वो जो खड़े हुए थे जिन्होंने रुकू इमाम के साथ नहीं किया, रुकू फर्ज था, जब नहीं किया तो आके मसला मालूम कर रहे कि भाई हमारी नमाज हुई नहीं हुई। मैंने कहा नमाज कहाँ से होगी, क्योंकि इस चीज़ के अंदर गलती करते हैं इमाम साहब जो है। तरीका तो ये है कि अल्लाह अकबर पहले के रुकू में बाद में जाए, लेकिन बाज़ इमाम साहब जो है या तो उसको यक्का कह देते अल्लाह, ये गलत बात है। अल्लाहु अकबर बस, इसमें मद नहीं है, न अजान में मद है, न तकबीर में मद है, ना ही क्या कहते हैं इकामत में मद है। लफ्ज़ अल्लाह पे मद नहीं है, मद है। अब ये कहता अल्लाह, वो रुकू में अल्लाह तो चल रहा है, वो बार बाद में होता है, लोग खड़े हैं। अब हम जैसे को जिसको पता होता है वो रुकू में चले जाता है, पीछे वाला सोचता है कारी साहब पहले चले गया, मेरे साइड में जो बंदे खड़े वो तो खड़े, मैं चले गया तो इशारा तो यही है ना कि ये पहले चले गया, लेकिन पहले नहीं गया, मैंने उसकी इत्तिबा की है, जो उसकी कैफियत है। बात समझे। अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये एक इशारे हैं, मुस्तहब है, माना पीछे वालों को बताने के लिए, लेकिन इसकी इत्तिबा नहीं है। इत्तिबा इमाम साहब की कैफियत की है। अगर इमाम साहब रुकू में चले गया, अल्लाह अकबर कह के चले गया, तो जब भी हमने इत्तिबा करनी, नहीं कह के गया जब भी उसकी इत्तिबा करनी है, तो वो रुकू में, इमाम रुकू में। इसी तरीके से समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इमाम साहब बाज़ जो है वो खींचते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब तक वो तो खड़ा हुआ है, इमाम साहब खुद खड़े, अब वो तो लोग सोच रहे जब हमीदा पूरा हो तो फिर हम खड़े। और बाज़ दफ़ा भूल जाता आदमी, समी अल्लाह की जगह अल्लाह अकबर भी कह देते हैं, समझे बात। तो चाहे वो अल्लाह अकबर के चाहे समी अल्लाह के, खड़ा हो जाना, इमाम खड़ा तो हम भी खड़ा। रुकू के अंदर जो है ये सर और पीठ बराबर हो, समझे बात। बाजे लोग ऊपर उठाते हैं, समझे, या जबकि झुका देते हैं। ये पीठ और सर बराबर होने चाहिए। बोला कि इतना बराबर हो कि इसको वो प्याला पानी का दूध के भर के रख दें तो वो झलके नहीं, बात समझे ना, झलके नहीं। और रुकू के अंदर ये गोडों को ऐसे मजबूती से पकड़ना है, मजबूती से हाथ को खोल के, बात समझ रहे। देखना किधर है, गोडों पे, गोडों पे देखना है। कहाँ पे देखना, गोडों पे नहीं, हाथ जो रखे हो तो उस पर देखना, गोडों पे, बात समझ रहे। रुकू में कहाँ देखना, गोडों पे। क़याम में कहाँ देखना, गोडों पे। क़याम में कहाँ देखना, सजदे की जगह पर। क़याम में सजदे की जगह देखना और रुकू में घोटों पे देखना, समझे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के, चाहे अपनी नमाज पढ़ रहा है, इमाम साहब के साथ पढ़ रहा है, बिल्कुल सीधा खड़ा हो। ये बाजे लोगों की कमर ऐसे सीधी होती नहीं, ठका करके रुक सही तरह चले। याद रखो कि एक दफ़ा सुबहान रब्बियल आला की मिक़दार सीधा खड़ा होना वाजिब है। क्या है, वाजिब। और वाजिब का दर्जा जो होता है वो फ़र्ज के बराबर होता है। अगर वाजिब छोड़ेगा सजदा सो के बगैर नमाज इसकी नहीं होगी। इसलिए एक दफ़ा सुबहान रब्बियल आला की मिक़दार माना कमर को बिल्कुल सीधा करके खड़ा हो, बिल्कुल। उसके बाद जो है सजदे में जाएगा जब आदमी, तो सजदे में गोडे को पकड़ के पहले गोडे को टिकाएंगे ज़मीन पे, फिर हाथ को टिकाएंगे, समझे बात, फिर माथे को, फिर नाक को, समझे। सजदे में नाक को देखना है,
नाक की तरफ। बात समझे मेरी? फिर जब आदमी एक सजदे से उठ के बैठेगा तो इसी तरीके से एक दफ़ा सुभान रब्बियल आला के मिक़दार सीधा बैठे। बाज़े लोग जो है क़ियाम के दौरान बिला वजह यूँ हाथ को हिलाते हैं, या टांग को, टांग हिल रही है, कभी हाथ हिल रहा है, कभी यहाँ, कभी यूँ, कभी दाढ़ी को। तो याद रखो कि अगर 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला की मिक़दार आदमी इस चीज़ों में लगा रहा तो इसकी नमाज़ टूट जाएगी, इसको पता ही नहीं होता। खारिश भी कर रहा है, खारिश जो ज़रूरी हो रही है तो आदमी थोड़ी करे, फिर हाथ को सीधा करे, फिर दोबारा थोड़ी कर ले, लेकिन यक्की लगा पड़ा है, क्या कहते हैं, इसको पता ही नहीं है कि मैं नमाज में हूँ। फरमाया कि 60 साल का बूढ़ा हो जाता है आदमी, नमाज पढ़ता है, उसकी बाज़े दफ़ा एक नमाज भी कबूल नहीं होती है। वजह यही है कि मसाइल का पता ही नहीं है। नमाज में हिलना कितना बड़ा गुनाह है। सहाबा किराम जो है वो इस तरीके से नमाज में खड़े होते थे कि अगर कोई जानवर भी आके बैठ, वो समझता था कि कोई दरख्त है उसके ऊपर जानवर आके बैठ जाते थे। वही नमाज है जिस नमाज के जरिए सहाबा किराम अपने मसाइल को हल करते थे, अल्लाह से मांगते थे। 2 रकात नमाज नफिल की पढ़ते थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मसले को हल कर देते। हम नमाज पढ़ते हैं, दुआएं घंटों मांगते हैं और पत्नी कितने वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं होते। आखिर हम उन नमाज तक को छोड़ देते। जो लोग नमाज को वज़ाइफ के हिसाब में पढ़ते वो 2 दिन के बाद मस्जिद से बाहर होते हैं। कोई भी इबादत करो अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए करो, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो सारे काम आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आदमी किसी के पास कर्ज लेने जाता है तो पहले उसको राज़ी करता है, उससे ताल्लुक़ बनाता है, वरना वो साफ कहता है भाई मैं आपको जानता ही नहीं। हालांकि उसने देना नहीं होता बातों को, लेकिन वो बोलता मैं जानता ही नहीं। एक बड़े मुफ्ती साहब थे, वो कहने लगे कि भाई मैंने पैगाम भेजा मातली के एक सेठ के पास। उसने कहा मैं उस मुफ्ती को जानता हूँ, हालांकि पूरा शहर जानता है। कैमरे के सामने नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सूरत हाल है। आदमी का जब अल्लाह से ताल्लुक़ होता है, अल्लाह से ताल्लुक़ होता है तो उसकी पहचान खुद हो जाती है। अब मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कारी अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ, टाउन कमेटी मस्जिद, समझे भट्टपाड़े का मोहल्ला का पानी नहीं देता, यूबीएल बैंक का नहीं देता, मेरी पहचान मस्जिद है, फौरन पहचान जाते हैं। ये टाउन कमेटी वाली मस्जिद के अंदर जो होता है वो बात करना है। तो बहुत है ना कारी भी मैं इसलिए बोलने लगा हूँ तो मलबारी भी इसलिए लगाने लगा हूँ कि ताकि पहचान सही हो। लोग पूछते थे कौन सा कारी, अव्वल तो कारी साहब कहते हैं सारे, लेकिन कारी साहब कौन से? ये टाउन कमेटी मस्जिद वाले। मस्जिद पहचान थी हमारी, मस्जिद पहचान, मस्जिद। अब हमारी क्या पहचान? जब अल्लाह से ताल्लुक़ होगा, समझे बात, तो अल्लाह ताला ज़रूरत के दायरे में हर जगह पहचान करा देंगे। इसलिए नमाज को जिस तरीके से पढ़ना फ़र्ज़ है, इसी तरीके से सीखना भी फ़र्ज़ है। सबसे पहले मस्जिद के अंदर एहतिमाम के साथ आए, 5 मिनट पहले मस्जिद में पहुंच के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करें, फिक्र करें। सुन्नत चाहे गैर मुक़िदा है उनका भी एहतिमाम करें, नफिल है उनका भी एहतिमाम करें। आज गैर मुक़िदा सुन्नत और नफिल का एहतिमाम करोगे तो आपकी मुअक्किदा और फ़र्ज़ के अंदर जान आएगी, अल्लाह से ताल्लुक़ बनेगा।
लोग कहते हैं सही असर की सुन्नत गैर मौक़िदा, पढ़ लो तो सवाब मिलता, नहीं पढ़ो तो ठीक है भाई, अल्लाह से ताल्लुक बनेगा। जो गैर मौक़िदा सुन्नत का एहतिमाम करेगा वो सुन्नत मौक़िदा छोड़ेगा, जो सुन्नत मौक़िदा का एहतिमाम करेगा वो फ़र्ज छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, कहीं भी होगा पढ़ेगा, कहीं भी होगा पढ़ेगा। और जो गैर मौक़िदा सुन्नतें या नफिल का एहतिमाम नहीं करेगा वो कल को सुन्नत मौक़िदा भी छोड़ेगा, कोई ना कोई वजह बनती है, फ़र्ज को भी छोड़ेगा। आपने देखा कई लोग होते हैं पहली सब में होते हैं, 10 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, 25 दिन होते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो मस्जिद में नजर ही नहीं आता। वजह क्या है? कौन सी चीज़ उनको मस्जिद से दूर ले गई? कुछ लोग अपने मतलब कोई हालात आ जाते हैं, कोई परेशानी आ जाती है तो फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, वो भी वज़ाइफ के साथ। ठीक है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुआ, ये भी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वज़ाइफ को, इबादत को सिर्फ अल्लाह के लिए करें, खालिस अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह। तो आज से ये अज़म और इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला नमाज 5 वक़्त एहतिमाम के साथ अदा करेंगे और सीख सीख के करेंगे। समझे? नमाज के अंदर बिल्कुल सुकून से खड़े होंगे, सुकून से, इत्मीनान के साथ। हाथ पैरों को हिलाना ये गलत बात है। आज हमारा ध्यान नहीं होता। सहाबी एक घर के अंदर आए, बच्चों को कहा शोर शराबा करो, फरमाया क्यों शोर शराबा करो? फरमाया कि पता चले कि मेरा ध्यान इस तरफ है या उस तरफ है, अल्लाह की तरफ है या इधर। जब अल्लाह की तरफ हो जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा। बाज़ दफ़ा आदमी किसी काम में मशगूल होता है तो कोई आता है, सलाम भी कर देता है, बैठ के भी चले जाता है, बाद में बोलता है यार तूने मुझे लिफ्ट नहीं कराई। बोला मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। वो इतना मशगूल होता है ना, उसका ध्यान तवज्जो होती है। तो जब नमाज में अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होगा, नमाज को ऐसे पढ़ो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, समझे? अगर इस तरीके से नहीं तो ये देखो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। खौफ खुदा, मैंने बताया ना, खौफ खुदा जब तक इंसान के दिल में नहीं होगा कोई मसला हल नहीं होगा, कोई इबादत खालिस नहीं होगी। खालिस होने के लिए खौफ खुदा का होना ज़रूरी है। और खौफ खुदा जब आता है जब आदमी अल्लाह के हर हुक्म पे और नबी के तरीके पे लब्बैक कहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको क्या कहते हैं, इन बातों को सुनने के बाद समझने की और फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत के लिए इनको नाफिज़ बनाए। ये वीडियो जो है इस्लामी चैनल क़ारिअतुर रहमान मुबारक पर अपलोड की जाती है, चारों चैनलों पर होती है। जहाँ पे भी सर्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये आपको सुन सकेंगे। सुनने के बाद इन बातों को वो समझें और फिर अमल करने की कोशिश करें। अपने नमाज के अंदर एहतिमाम भी पैदा करें और साथ साथ नमाज को सीख कर फिर पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक और सआदत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।